So hello, welcome back once again. It's a new lecture of mathematical physics. I already tell you guys this series so much helpful for those students who are interested in physics, and if you are interested in physics then mathematical physics is so much important. So I covered some topic of mathematical physics, that is I already tell you, that is like vector algebra. I I will I will discuss with you all the later, but right now I will discuss calculus, right? So in previous lecture I already complete the topic like vector algebra, trigonometry. This is the basic things, right? Because these are the most important, because these component it's so much important. If you want to understand the physics, then mathematical physics is so much precious. So I try to complete the basic mathematics. It's my third or fourth lecture, I'm not aware about it, but I think it's fourth one. So today I will discuss with you all the concept of differentiation and integration. It's a calculus, it's a part of calculus, and today I'll discuss with you all the differential calculus. Differential calculus and integral calculus is most important segment in mathematical physics, because every second and every third derivation directly or indirectly inclined toward integration and differentiation. So it's a most important topic. Please, my humble request to all of you, please black, focus on your slides and focus on your lecture and try to understand the concept of differential calculus, right? So without extra discussion, now we will start the topic, that is differential calculus, right? Differential calculus. So guys, first we will try to understand the meaning of differential calculus. What the meaning of differential calculus? So firstly, differential calculus, the simple meaning, we will break the large thing. Like we have a large portion, we will break it in small part, right? Like कोई बड़ी हमारे पास एक large क्वांटिटी है, उसको हम छोटे छोटे पोर्शन में जब ब्रेक करते हैं, दैट इज नॉन एज डिफरेंशियल, राइट? सो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों ने जो शुरू करना है, कैसे हमने डिफरेंशियल कैलकुलस को समझना है, मैं आपको दो ग्राफ बताऊंगा। तो ग्राफ के स्लोप से आपको मैं बताऊंगा कि दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट? डिफरेंशिएशन की ये बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बिकॉज होपफुली कि आपको ग्राफ्स के बारे में पता होगा। अगर आपको ग्राफ्स के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको इस लेक्चर में ये सब कवर करवा दूंगा, राइट? सो नाउ आई विल डिस्कस विद यू ऑल द फर्स्ट थिंग, दैट इज ग्राफ्स। यू नो, इन द ग्राफ you have two axes, this one x axis and this one y axis, right? So you just think, जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा y भी बढ़ रहा है, मतलब ऐसा सोचना है आप लोगों ने। तो इस केस में हमारे पास मुझे लगता है ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, राइट? अगर हमारा x वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, y ऑल्सो वेरी, इन दैट टाइम दिस इज द ग्राफ, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, राइट? सो नाउ अगर इसमें आप देखें ये एंगल, ये यहाँ पे एंगल थीटा है, अगर यहाँ पर कहीं पे भी इस एंगल को अगर आप देखते हैं पूरे इस स्ट्रेट लाइन पे, तो मुझे लगता है ये एंगल यहाँ पे कंप्लीट, जिस भी पॉइंट पे हम इस एंगल को देखना चाहते हैं तो हर जगह ये एंगल मुझे क्या दिख रहा है, थीटा क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है दोस्तों? अब अगर हमारे पास थीटा कांस्टेंट है तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप है इस ग्राफ की, कैसी है, कांस्टेंट। स्लोप होता क्या है? स्लोप होता हमारे पास टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है, कांस्टेंट, दैट मीन ये एंगल हमारे पास कांस्टेंट। सो ये तो था मेरे पास पहला सिनेरियो। सो नाउ नेक्स्ट, दोस्तों, अगर मेरे पास एक सिमिलर काइंड का मैंने एक और प्लॉट लिया, इसमें मेरे पास क्या है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। अगर इस साइड चले जाओगे तो इसके इस साइड आप चले जाते हो तो ये दोनों एक जगह पे मिले हुए हैं, थोड़ा सा दूर हो गया। ये आपके पास माइनस एक्सिस होती है, आपके पास माइनस वाई एक्सिस होती है, ठीक है ना? तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, पर मैं प्लॉट इसमें डिस्कस करूँगा आपके साथ।
अगर मैं आपके साथ प्लॉट डिस्कस कर रहा हूँ तो इसमें सारी चीज़ें हम इन डेप्थ में समझेंगे और सभी चीज़ों को बहुत फोकस के साथ जानेंगे, राइट। ओके, अब मान लो हमारे पास दोस्तों प्लॉट कुछ ऐसा वेरी कर रहा है इस तरह से। अगर हमारा प्लॉट ऐसे वेरी कर रहा है, पहले हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, बट अभी के केस में हमारे पास हमारा प्लॉट ऐसे ऐसे गया और ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखना चाहूँ तो स्लोप, इस पॉइंट पे जब आपको पता है कि स्लोप लेते तो एक पॉइंट पे आप इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर एंगल चेक करेंगे थीटा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ये कुछ ऐसी, तो यहाँ पे एंगल थीटा। इस पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और यहाँ पे थीटा। और पहला प्लॉट और दूसरा प्लॉट अगर देखोगे तो एंगल में कोई ना कोई डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर आपका एंगल क्या हो रहा था, कांस्टेंट रह रहा था। तो यहाँ पे एक सिंपल सी हमारे पास बात हुई सेकंड में कि हमारा जो थीटा है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ पे हमारी जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इस जर्नी से हमारे पास कुछ शुरुआत होती है हमारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की। तो ये पहला आप समझिए कि यहाँ पे आपके पास स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो स्लोप कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब टेन थीटा कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है। नाउ अब ये दोनों बातें अगर जैसे ही आपको पता लगती है तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर जाता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ फिर से दोनों ग्राफ की नई जर्नी में। ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ, ठीक है। अब लेट अस कंसीडर, मैंने यहाँ पे कोई दो पॉइंट लिए बच्चों। यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट एक ड्रॉ किया जिस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, पहले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया, उसको नाम दे दिया मैंने बी पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ से ऐसे बताया कि ये कुछ एक्स एक्सिस में ये बता रहा है वाई, इसको मान लो आप x1, इसको मान लो आप x2, इसको मान लो आप y1, इसको मान लो आप y2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या है, ये वाला x1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपके पास डिस्टेंस क्या है, ये वाला x2। ऐसे ही आपको y एक्सिस में देखने को मिलेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या है, y1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास है y2। अगर दोस्तों मुझे टेन थीटा निकालना है, स्लोप अगर निकालना है, जिसे मैं क्या कहता हूँ, टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही है ये। तो टेन थीटा हमारे पास कहाँ से आता है, जैसे कि आपने पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जो ये आपके पास है, आपके पास है टेन का फैक्टर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर इसको कुछ ऐसा ड्रॉ करते हो, इसको ये, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपके पास ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये आपके पास बेस का काम कर रहा है। तो बेस के लिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए और परपेंडिकुलर के लिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ईजिली आप निकाल सकते हो। अगर कंप्लीट डिस्टेंस आपके पास कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे इसको माइनस कर दो, तो मुझे लगता है x2 माइनस x1 हमारे पास क्या आ गया, 20। सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर के लिए अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको चाहिए, तो इससे ये वाला माइनस कर दो, तो दैट मीन y2 माइनस y1। तो आप यहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं दोस्तों स्लोप, जिस स्लोप को हम क्या कह रहे हैं, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और उस टेन थीटा को अगर हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। पहले केस में हमने क्या कर दिया, स्लोप फाइंड आउट कर दिया। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास इस तरह से आपका ये ग्राफ वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर भी अगर आपके पास कोई दो पॉइंट कंसीडर किए, पहला पॉइंट अगर लेट अस कंसीडर मैंने ये माना ए, और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया बी। अगर यहाँ के लिए आप अगर ए बी अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ के लिए भी मैंने आपको बोला कि ए बी की वैल्यू निकालो, इसको मान लो आप y1 मान लो, इसको आप y2 मान लो, इसको आप x1 मान लो, इसको आप x2 मान लो। यहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन थी, तो आपके पास इस तरह के ट्रायंगल बन रहा था, तो आपने निकाल दिया, आपने अपना ट्रिग्नोमेट्रिक
का जो टेन थीटा का ये फॉर्मूला इजीली ड्रॉ कर पाए, परंतु यहाँ पर आपके पास ये बीच में स्पेस बच रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, नहीं मतलब स्पेस ही ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्पेस हमारे पास बच रहा है, जिसको मैंने ये वाइटनर से ड्रॉ कर दिया है ना, ये देखो ये वाला स्पेस बच रहा है। यहाँ पर हम डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इतना बड़ा स्पेस है, तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको हमें कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, है ना। मतलब ये स्ट्रेट लाइन थी कुछ ऐसी, इसके बीच में ये हमारे पास जो एरिया बच रहा था, राइट। सो इसका हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि अगर ये हमारे पास यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस है, स्पेस को क्या करते हैं हम कम करते हैं। अब बी और ए को हम एक दूसरे के बिल्कुल पास पास लाते हैं, ए को यहाँ लाया और बी को बिल्कुल यहाँ लाया। जब इनको हमने बहुत ज़्यादा पास लाया तो फिर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बनी। तो अभी हमारे पास कुछ बन तो रहा है वैसे जैसा पहले बन रहा था। अगर यहाँ पे टेन थीटा अगर ए और बी के लिए निकालना हो तो क्या निकलना था, y2 माइनस y1। सिमिलरली जैसे हमने पहले वाले ग्राफ में किया x2 माइनस x1, परंतु ये हमें दिक्कत दे रहा है, तो इसकी वजह से हमने इसको छोटा कर दिया। इसको छोटा कर दिया तो अगर इसको मैंने बहुत छोटा कर दिया तो इसको क्या मैं dy लिख सकता हूँ, जो मैंने ये किया है। और इसको भी मैंने बहुत छोटा कर दिया कि इसको मैं dx लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे लगता है मेरा जो स्लोप है वो आ गया है, जिसे कहता हूँ मैं dy अपॉन dx। तो यही आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ से क्रिएट हो गया। और आपने पढ़ा भी है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई बड़ा कोई लार्ज कोई स्पेस है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल आपके पास क्या होता है, जोड़ना। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब ब्रेक करना छोटे छोटे पोर्शन में। तो यहाँ पर हमने ब्रेक ही किया। ये बड़ा हमारे पास एक इतनी बड़ी हमारे पास स्पेस थी, तो इसको हमने छोटे में ब्रेक करके हमने ये ऑपरेटर खोल दिया इसके लिए। सो होपफुली आपको ये बात समझ आई, राइट। नाउ अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको समझ आई तो हमें यहाँ से हमें ये पता चला कि हम यहाँ से डिफरेंशियल कैलकुलस की जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसे हम यहाँ से लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो ये होपफुली दोनों बातें आपको समझ आई। नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास है। सो मुझे लगता है कि 2 स्लाइड में जितना मुझे बताना था डिफरेंशिएशन के बारे में उतना आप समझ चुके हो गए, है ना। सो नाउ तो हमारे पास 2 फॉर्मूलाज यहाँ से बन चुके हैं, ये आपके बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए। पहला, जब आपके पास पहली कंडीशन आपके पास क्या थी, जब आपके पास कांस्टेंट क्या था, एंगल आपके पास जो आपका स्लोप है, स्लोप आपके पास क्या था, कांस्टेंट था, है ना। स्लोप क्या था, कांस्टेंट था। जब स्लोप कांस्टेंट था तो उस टाइम पे आपके पास क्या आया है, टेन थीटा क्या बना आपके पास, टेन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसकी वैल्यू आपके पास सिंपली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। ये आपके पास स्लोप का फॉर्मूला है। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मूला ऑफ स्लोप। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, जब हमारा जो स्लोप था वो कांस्टेंट नहीं था, तो उस केस में हमारे पास क्या हुआ, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास है फ्रेंड, जिसमें हमारे पास स्लोप कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। उसमें हमारे पास जो टेन थीटा आया वो क्या आया हुआ, dy अपॉन dx। तो इसको अब स्लोप भी कहते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। तो ये कौन सी कंडीशन थी, जब हमारे पास स्लोप इज नॉट इक्वल कांस्टेंट, है ना। तो ये दूसरी कंडीशन। ना ये हमारे पास जो टर्म है इसको कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x, राइट। नाउ अब यहाँ पर अगर आपको ये बात समझ आ गई तो इसमें हमने सिंपल क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो यहाँ से हमें 2 बातें पता चली। पहला तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं इसको,
जो मैंने यहाँ पे बता दिया, स्लोप ऑफ y वर्सेस x। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक कांस्टेंट से स्टार्ट करूँगा। लेट अस कंसीडर मेरे पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब इन चीज़ों पे ध्यान देना। ऊपर तो आपने समझ ली सारी बातें, है ना, ये आपको समझ आ गया, ऊपर की बातें समझ आ गई। अब मैं कांस्टेंट टर्म लेता हूँ। मेरे पास कोई कांस्टेंट है, मैंने अगर y की वैल्यू ले ली आपके सामने 7, कि y की वैल्यू मेरे पास 7 है, तो मैं कहता हूँ कि इसके लिए मेरे को आप dy/dx निकाल के बताओ, dy/dx निकाल के बताओ। अगर y की वैल्यू 7 है बच्चों, मैंने कह दिया कि dy/dx निकाल के बताना, तो उसको अगर मैं प्लॉट में अगर आपको दिखा दूँ, प्लॉट अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ, ठीक है। y की वैल्यू कितनी बोली मैंने, 7। लेट अस कंसीडर 0 2 0 3 5 7, मैंने और नंबर से ली। अब मैंने कह दिया कि यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया कि y की वैल्यू 7 है और dy/dx बताओ। जब भी कोई कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। अगर आपके पास आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की अगर आप डिफरेंशिएशन कभी भी करोगे तो ऑलवेज आपके पास 0 होता है। तो यहाँ पर आपके पास 7 की वैल्यू ये है कांस्टेंट, बस ऐसे ही वेरी करेगी और कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपके पास एंगल भी 0 है और यहाँ पर आपकी स्लोप भी वेरी नहीं कर रही है। तो ये आपके पास कांस्टेंट है। तो इस तरह का प्लॉट इसके लिए रहता है और हमेशा कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होगी वो ऑलवेज 0 होगी। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ फोकस ऑन दीज फार्मूलाज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। नाउ अब मैं बात करता हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ बेसिक फार्मूलाज हमारे पास हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके साथ पहला फार्मूला रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हमारे पास डिफरेंशिएशन फार्मूलाज है जो मैंने अभी लिखवाया। ये कि आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है ना, जो ये के स्टैंड फॉर कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो फिक्स वैल्यू आपके पास है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर आपको y की वैल्यू फिक्स करी थी, अगर आपने देखा भी ऊपर y = 7 कर दिया, तो 7 का अगर आप dy/dx निकालने लग गए तो इधर कुछ भी नहीं था, तो वो आपके पास सीधे सीधे क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये ऑलवेज 0 होगा, सो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। और दूसरा dx/dx, अगर मैंने कह दिया कि अगर आपके पास 1 मिनट, अगर आपके पास y की वैल्यू x है, इसके लिए dy/dx फाइंड आउट करके बताओ। तो देखो y की जगह x पुट करो और नीचे dx, तो ये तो ऐसे कैंसिल आउट कर दिया, तो 1 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया, है ना। अगर मैंने आपको बोल दिया कि कोई वैल्यू कांस्टेंट है, ये जो तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि dx/dx इज इक्वल टू k। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ था, यहाँ पे आपके पास सिर्फ कांस्टेंट अकेला था, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट के साथ x भी है, तो यहाँ पर आपके पास k आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको दे दिया कि y = 7x, कांस्टेंट तो दिया, साथ में x का फैक्टर भी यहाँ पे है। अगर आपने इसके लिए dy/dx फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, 7 आपके पास कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, कांस्टेंट को अंदर आप डिफरेंशिएशन करो, d/dx और y की जगह आपका x आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया कि आपके पास dy/dx कांस्टेंट की वैल्यू आई या नहीं आई, कांस्टेंट यहाँ पे आया या नहीं आया, जो यहाँ पे आपके पास इस वाले फॉर्मूले में देखने को मिल रहा है। गेट इट माई पॉइंट। सो नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है यहाँ पे x⁻n। इसका मतलब है कि अगर आपके पास d/dx या आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ठीक है ना, अगर d/dx x⁻n आपके पास है, इसका फॉर्मूला क्या बताया इन्होंने, nxn-1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर इसका एक एग्जाम्पल अब देख ही लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हमारे पास है कि y = x⁻7, जैसे मैं बार बार 7 नहीं ले रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने बोल दिया कि dy/dx आप फाइंड आउट करके बताओ। तो फॉर्मूला लगाओ, n की जगह क्या है 7, तो यहाँ पे पुट करो 7x और 7 - 1 = 7x⁻6 आंसर। गेट इट माई पॉइंट। सो ये इस तरह से होता है, राइट। सो अब इन 3 फार्मूलाज में पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला और चौथा फार्मूला, ये 4 बातें मैंने विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ करी है। ये इसलिए करी है कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए।
और ये वीडियो खासकर शेयर करना आप लोगों उन बच्चों के साथ जो नीडेड है, जिन्हें मैथमेटिकल फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज मैं बहुत मेहनत के साथ इन चीज़ों को आपके साथ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बिकॉज इतने इन डेप्थ के साथ कि आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझिए। मेरा मोटिव ये है कि आप बेसिक चीज़ों पे काम करें। अगर आपके बेसिक बहुत बेटर है तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, राइट। बिकॉज फिजिक्स कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, मैंने पहले ही बताया है, पर मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो नाउ अब कुछ मैं बातें डिस्कस करता हूँ जो मैंने अभी तक बताया, इससे रिगार्डिंग मैं कुछ सिंपल बातें करूँगा। जैसे कि एक फॉर्मूला ले लेता हूँ, फॉर्मूला या क्वेश्चन टाइप ही ले लो। लाइक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया, क्वेश्चन कंसीडर कर दिया, मेरे पास है 3x रेज टू की पावर 4, राइट। y इज इक्वल टू 3x रेज टू की पावर 4। तो अगर ये मेरे पास है तो मैंने इसके लिए आपको कह दिया कि आप इसके लिए क्या करो, इसके लिए मेरे पास डिफरेंशियल इसका फाइंड करो। तो मतलब आपको क्या करना है, dy बाई dx। तो क्या करोगे, अब आपके पास डी अपॉन डी एक्स ये है, y की जगह पुट करो 3x रेज टू की पावर 4, राइट। एक मिनट, थोड़ा सा पेन पकड़ नहीं पा रहा है, एक मिनट, ओके। सो नाउ अब आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इसके लिए निकालना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये कांस्टेंट टर्म है 3 आपके पास है या नहीं है, ये 3 अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचा, डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू की पावर 4, है ना। तो अगर ये आपके पास बचा तो इसमें आपके पास क्या करोगे, 3 डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या लगेगा, एक्स रेज टू की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, इंटू 4x इंटू 4 - 1। तो इसका क्या बना आंसर आपके पास, 12x रेज टू की पावर 3 आंसर। तो होपफुली कि आपको समझ आया होगा इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू की पावर x। अगर किसी एक्सपोनेंशियल की आपके पास रेज टू की पावर है, देखो यहाँ पर मैंने आपके साथ फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। ये पहला फॉर्मूला है, एक मिनट, ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला है, ये चौथा फॉर्मूला है, ठीक है, और ये पांचवा फॉर्मूला है। इनका बिल्कुल ध्यान रखना है, ये समझने हैं सारे, ठीक है ना। अगर इनको समझोगे नहीं फिर तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा पढ़ने का। अब एक्सपोनेंशियल अगर आपके पास है, एक्सपोनेंशियल का अगर आपने डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है फर्स्ट, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको कह दिया कि y इज इक्वल टू ई रेज टू की पावर 3x है, तो अब मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करके बताओ, तो इसका मतलब ई रेज टू की पावर 3x ही होगा, राइट। तो इसका भी ध्यान दें। नाउ नेक्स्ट अगर मान लो मेरे पास अगर सिक्स्थ आप फॉर्मूला नंबर ले लो, y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स ले लो। तो इसके लिए अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करूँगा दोस्तों, तो ये ऑलवेज 1 अपॉन एक्स होगा। क्या होगा, ऑलवेज 1 अपॉन एक्स होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले है, फॉर्मूले तो आपके टिप्स पे होने चाहिए। नाउ 7, अगर 7 में अगर लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू ए रेज टू की पावर एक्स है, ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला अगर मैं इसके लिए अगर आपको बोलूँ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, इसके लिए आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स होगा ए रेज टू की पावर एक्स लॉग ए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने आपको बोल दिया y रेज टू की पावर 3x होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा इसके लिए, 3 रेज टू की पावर x लॉग 3, ये इसका मतलब, ठीक है ना। मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, क्योंकि इतने इन डेप्थ कोई डिस्कशन नहीं करते। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप सभी चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक वे में जानें। 7, और ना हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको यहाँ तक तो मैंने बता दिया, अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के जो डिफरेंशिएशन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव ये हमारे पास है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव पहला फॉर्मूला, अगर आप साइन एक्स के लिए डिफरेंशिएशन निकालोगे तो कॉस एक्स आएगा। दूसरा, सॉरी इधर आओ पहले, दूसरा अगर आप कॉस एक्स के लिए निकालोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स आपके पास सेक स्क्वायर एक्स होगा। और चौथा, कॉट एक्स का आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स होगा। एंड फिफ्थ, सेक एक्स का आपके पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। और सिक्स्थ आपके पास जो है कॉसेक एक्स है, ये
cosec x, इसका होगा माइनस cosec x और cot x। तो ये फॉर्मूले भी आपको टिप्स पे होना चाहिए। अगर सारे फॉर्मूले दोस्तों आपके टिप्स पे हो गए तो मुझे ना कोई दिक्कत आएगी आपको पढ़ाने में और ना ही आपको कोई दिक्कत आएगी मुझसे समझने में, है ना। तो ये वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ना। और इसके बाद जो मैं एक और टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ जो मेरे पास है, जो मैंने पहले बताया, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल कैलकुलस भी बहुत डेप्थ में समझना है। सो नाउ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले कि आप यहाँ तक आप समझ गए इस फॉर्मूला को, तो एक दो प्रॉब्लम इसके लिए अगर आप देख सकते हो तो देख लेना। लाइक चलो एक तो मैं ही करवाता हूँ। जैसे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में ले जाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन सिंपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू की पावर क्यूब। अब इसके लिए अगर मैंने बोल दिया कि आप dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करके बताओ तो कैसे निकलेगा। तो आपको सिंपल पता है एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2x 2 माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x आंसर आ गया, आया या नहीं आया। अब दूसरा आपके पास मान लो दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया और मैंने पूछ लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ एक्स है, यहाँ थीटा है, तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ये कब होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है ना। इन बातों का भी ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। ये नहीं कि अब आप बिल्कुल ब्लाइंडली जैसा बता दिया वैसे करते रहे। अब लेट अस कंसीडर, अगर आपने एस इज इक्वल टू, मैंने टी क्यू बोल दिया, एस को आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी मानते हैं आपको पता होगा। अगर मैंने बोल दिया कि डी एस अपॉन डी टी फाइंड आउट करो तो मतलब वही है कि मेरे को इसमें क्या करना है, 3t रेज टू की पावर 2 डायरेक्ट, है ना। अगर मैंने पूछ लिया इसके लिए डी एस अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करके बताओ तो ये तो फंक्शन तो टी के रिस्पेक्ट में है, वाई टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना है, परंतु यहाँ तो एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ लिया तो इसके लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये जीरो हो जाएगा। गेट इट माई पॉइंट। सो होपफुली कि आप समझ पा रहे हो, है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशेंट है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, परंतु अभी वीडियो काफ़ी हो गई, 25+ मिनट की वीडियो बन चुकी है। इज़ इट कम लाइक सफिशेंट। अगर आप इतना करते हो, एक सिस्टमैटिक वे में करते हो, देन आई थिंक कोई इशू नहीं है, राइट। सो इतना करिएगा और सिस्टमैटिक वे में करिएगा। कुछ मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐड करूँगा, अभी नहीं करूँगा, अभी कल भी मेरा एक लेक्चर आएगा, ये 2 दिनों के बाद आएगा, जैसे भी आएगा, पर आप कनेक्ट रहिएगा। बिकॉज आपका कनेक्शन है, आपकी एक सिस्टमैटिक वे में जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज उस अंडरस्टैंडिंग से ही हम फिजिक्स को टैकल कर पाएंगे, वो यहीं से डेवलप होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए सफिशेंट है जो भी हमने पढ़ा है, इसको थोड़ा आप इन डेप्थ देखिएगा और समझिएगा कि क्या बातें की है। मैंने बहुत कम टॉपिक कवर किए, कम बातें की है। मैं ज़्यादा पढ़ाने में भरोसा नहीं रखता हूँ, कम पढ़ाऊँगा पर एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाऊँगा, है ना। सो इज इट सफिशिएंट फॉर टुडे। कल ये हम जो भी है डिफरेंशियल फार्मूलाज कैसे कैसे रन कर रहे हैं, कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है और कल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। चलो आज के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। वाई क्वेश्चन है आज के लिए, वाई इज इक्वल टू 2x रेज टू की पावर 5, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cosec x। तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a2x। और फोर्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2e रेज टू की पावर 9x। और फिफ्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू sin x। और सिक्स्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e रेज टू की पावर x, ठीक है ना। ये 6th क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है और इनके रिजल्ट मुझे कमेंट सेशन में बताना है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए धन्यवाद।